Hello students, today we are here with our next lecture of life processes. ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम स्टडी कर रहे थे. ब्लड के बारे में हमने कल डिस्कस किया था. पिछले वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया था उसमें हमने ब्लड के प्लाज्मा के बारे में डिस्कशन कर लिया था. आज हम ब्लड के बाकी जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं विच आर कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स और द ब्लड सेल्स, द सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड. क्लियर? तो जो 45% हमारे पास ब्लड का पार्ट है ये सॉलिड पार्ट बनाते हैं. 55% part is the plasma of blood. Out of these formed elements, the three types of blood cells are there. First one is RBC, red blood corpuscles. Red blood corpuscles. Corpuscles means the floating cells. Clear? RBCs constitute about 40% part of the blood. Scientifically, they are known as erythrocytes. These are basically red in color. Why they are red in color? Red colored because an iron containing pigment called as hemoglobin is present in the RBCs. Hemoglobin is an iron containing pigment. Here hemo is originate from the word heme. It is iron and globulin is a type of protein. So it is an iron pigment and deficiency of hemoglobin in the blood causes anemia disease. Clear? तो यहाँ पर हमारे पास आरबीसीज रेड कलर की है. क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन एक प्रोटीनेशियस पिगमेंट प्रेजेंट है जिसकी वजह से हमारी आरबीसीज कैसी है? रेड कलर की है. नाउ कम टू द शेप ऑफ आरबीसीज. आरबीसीज आर बायकॉन्केव डिस्क शेप्ड. ठीक है, बायकॉन्केव डिस्क शेप्ड मीन्स इस टाइप से इनका शेप हमारे पास होता है. This is the particular shape of the RBCs. Now, come to the lifespan of RBCs. The lifespan of RBCs is lifespan. It is about 120 days. One more thing, the RBCs of mature RBCs of mammals are anucleated and they are also devoid of the cell organelles. Here, the mature RBCs of mammals are devoid of nucleus, and other cell organelles. क्लियर? मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस और बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स एक सेल में होने चाहिए वो सेल ऑर्गेनल्स मैच्योर आरबीसीज में एब्सेंट होते हैं, यंग आरबीसीज में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो मैमल्स के मैच्योर आरबीसीज है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज. आफ्टर 120 डेज द आरबीसीज गॉट डाइड. ठीक है, 120 डेज के बाद इनकी डेथ हो जाएगी और डेथ के बाद ये हमारी बॉडी के एक ऑर्गन जिसे हम कहते हैं स्प्लीन, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. इट इज स्प्लीन. यहां पर ये कलेक्ट होती है और स्प्लीन उससे फिर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देता है. ठीक है, तो इस तरीके से डेथ के बाद जो आरबीसीज है वो कहां चली जाती है? स्प्लीन में चली जाती है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. इसके बाद न्यू आरबीसीज का जो फॉर्मेशन है वो कहां पर होगा? सो द फॉर्मेशन ऑफ न्यू आरबीसीज टेक्स प्लेस इनसाइड द रेड बोन मैरो. रेड बोन मैरो में न्यू आरबीसीज का फॉर्मेशन हमारे पास होता है. आरबीसीज में एक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है the enzyme called as carbonic anhydrase. It is the fastest reacting enzyme.
The enzyme which is present in RBC is carbonic anhydrase enzyme, and it is the fastest reacting enzyme. Now, one more important thing, what is the number of RBCs in the blood? The number of RBCs is about 4.5 to 5.5 lakh per cubic mm of the blood. Clear? So its number is 4.5 to 5.5 lakh per cubic mm of the blood. The deficiency of RBC or hemoglobin causes anemia disease, in which the RBCs or the hemoglobin got deficient in the blood. Now, what is the important function of RBC? Due to the presence of hemoglobin, RBCs perform a very important function, that is of gaseous transport. ठीक है, जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आती है, इस ऑक्सीजन को या जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सेल्स रिलीज करती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का जो फंक्शन है वो हमारी आरबीसीज करती है. सो द फंक्शन ऑफ आरबीसीज इज transportation of gases like O2 and CO2. These are some important points or the important things about the RBCs. ठीक है. सेकेंडली हम देखने वाले हैं WBCs के बारे में. ठीक है, WBCs white blood corpuscles, they are also called as soldiers of our body, because the important function of WBC is to fight against the diseases. So the next cell is WBC, that is white blood corpuscle. They are also known as leukocytes. They are colorless because there is no hemoglobin like pigment, so these are colorless. Their lifespan is about 5 to 10 days. Clear? 5 to 10 days. कुछ बुक्स में आपको 3 to 5 days भी लिखा हुआ मिल सकता है. So it is about 5 to 10 days इसकी लाइफ साइकिल है. New WBCs are also formed in the red bone marrow. The WBCs basically of two types. Clear? Here the two types of WBCs are there, and their size is more than RBCs. ठीक है, आरबीसी से बड़ा साइज है इनका, और बेसिकली स्फेरिकल इन शेप. दे आर स्फेरिकल इन शेप एंड देयर न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड, ट्राइलोब्ड और मल्टीलोब्ड. हियर sometimes the WBCs also shows amoeboid movement. The important characteristic of the WBC, that is they shows amoeboid movement. ठीक है, amoeboid movement means अमीबा जैसा मूवमेंट. ठीक है, अमीबा किस तरह से मूव करती है? अमीबा मूव करती है विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया. तो यहाँ पर जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई एंटीजन हमारी बॉडी पे अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स की तरह बिहेव कर रहा है और हमारी बॉडी को डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करने की कैपेसिटी देता है, तो उस केस में जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी पे अटैक कर रहा है, तो सपोज दिस इज द WBC एंड दिस इज द एंटीजन विच अटैकिंग ऑन आवर बॉडी. ठीक है, ये एंटीजन हमारी बॉडी के सारे बैरियर्स क्रॉस करके हमारे ब्लड तक पहुंच गया है. तो उस केस में हमारी WBCs क्या करेगी? एमीबॉइड मूवमेंट शो करेगी, और यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है WBCs की, ये
सेल मेम्ब्रेन इस तरह से मॉडिफाई होकर सूडोपोडिया फॉर्म करती है। जैसा अमीबा में आप देखते हैं सूडोपोडिया फॉर्म होते हैं, तो सूडोपोडिया फॉर्म करती है और इस पार्टिकल को इनगल्फ कर लेती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज phagocytosis. If the particle which is engulfed by the WBC is solid in nature, ठीक है, यदि वो सॉलिड स्टेट में है तो प्रोसेस होगी phagocytosis. If the liquid particle is engulfed by the WBCs, then the process is called as pinocytosis. ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो WBCs है ये अपना शेप भी चेंज कर सकती है और जिस तरह का एंटीजन अटैक कर रहा है उसके हिसाब से अपना शेप चेंज करके उसको इनगल्फ करती है और इनगल्फ करने के बाद उससे जो प्रोटीन प्रोड्यूस करती है दैट इज कॉल्ड एज एंटीबॉडीज विच प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी. Two types of WBCs are there, that is A granulocyte and granulocyte. ठीक है, पिछली क्लास में हमने पूरा टेबल देखा था. एक बार फिर से मैं वो शॉर्ट सा टेबल बनाती हूँ. WBCs के लिए हम पूरा बनाएंगे. तो यहाँ पे WBCs जो है बेसिकली टू टाइप्स ऑफ WBCs देयर, दैट इज A granulocyte and granulocyte. Now one more thing, हम WBCs का नंबर लिखना भूल गए हैं. WBCs का नंबर इट इज 6000 to 8000 per cubic mm of blood. Its number is like this. Here A granulocyte and granulocyte, two types of WBCs are there. A granulocyte again divided into three categories, that is neutrophil. Neutrophil, the largest number of WBC in the blood. सबसे ज्यादा जो हमारे पास होंगी दे आर द न्यूट्रोफिल. तो न्यूट्रोफिल्स का नंबर सबसे ज्यादा होता है. देन इओसिनोफिल एंड द थर्ड वन इज बेसोफिल. ना इनको स्टेनिंग की प्रोसेस के बेसिस पे हमने डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है. स्टेनिंग की प्रोसेस मींस, एक मिनट, ये हमारे पास ग्रेनुलोसाइट टाइप है ना, दिस इज द ए ग्रेनुलोसाइट. क्लियर? तो यहां पर जो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इओसिनोफिल हमारे पास टाइप्स है. न्यूट्रोफिल्स आर न्यूट्रल इन नेचर. ये किसी भी डाई के साथ कलर शो नहीं करती है, दैट्स व्हाई दे आर न्यूट्रल इन नेचर एंड दे आर नेम्ड एज न्यूट्रोफिल. इओसिनोफिल्स जो है ये एसिडिक स्टेन के साथ कलर शो करती है. द स्टेन इज इओसिन. इओसिन इज एन एसिडिक स्टेन. उस एसिडिक स्टेन के साथ ही कलर प्रोवाइड करवाती है. और बेसोफिल जो होती है वो बेसिक स्टेन के साथ कलर देती है, दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज बेसोफिल्स. नेक्स्ट वन इज ए ग्रेनुलोसाइट. दीज आर अगेन ऑफ टू टाइप्स. दे आर मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट. Clear? Lymphocytes are again of three types. These are T lymphocyte, B lymphocyte and natural killer cells. Natural killer cells. ये cells basically हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है. लार्जेस्ट नंबर हमारे पास न्यूट्रोफिल्स का होता है एंड मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट WBCs. ठीक है, ये लार्जेस्ट साइज की WBCs है और ये बाद में जाकर क्या बनाती है, मैक्रोफेजेस का फॉर्मेशन करती है और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है. डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करने की कैपेसिटी देती है. क्लियर? सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड functions of the WBC. The important function of WBC is to provide immunity and to fight against the diseases. That's why they are called as soldiers of our body. The third type of blood cell is platelets. Third one is the platelets, and the platelets are fibrous
in structure. They are also called as thrombocytes, and their lifespan is approximately 7 to 10 days. The number of thrombocytes in the blood is about 2.5 to 5 lakh per cubic mm of the blood. This is the number of platelets in the blood, and the platelets are very important in playing the role of blood clotting. The important function of platelets is blood clotting. जब हमें चोट लगती है तो उस टाइम पर ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, और उसके साथ जैसे ही ब्लड वहां से निकलना शुरू होता है तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर वहां पर एक क्लॉट बन जाता है. दैट क्लॉट इज फॉर्म्ड बाय द प्लेटलेट्स. सो दीज आर द important type of blood cells present in the blood. Now come to the point, functions of blood. What are the important functions of blood? We all know that blood plays a very important function in our body. ना आप कुछ फंक्शन तो देख ही चुके हैं. प्लाज्मा के फंक्शंस जो हैं वो भी ब्लड के फंक्शंस ही हैं, क्योंकि प्लाज्मा भी ब्लड का ही पार्ट है. तो प्लाज्मा हमारे पास डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करता है, स्पेशली ऑफ द फैट्स. RBCs help in the gaseous transport. WBCs help in the protecting the body from diseases. Platelets help in the blood clotting. After that, blood also plays a very important role in the maintenance of body temperature. ठीक है, तो ब्लड हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है. तो शॉर्टली हम ब्लड के फंक्शन सीधे लिखेंगे. तो इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ब्लड हमारे पास क्या है? फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ substances like mineral salts, fats, hormones, etc. Second one is helps in transport of gases like CO2 and O2. Third one is protection against the diseases. Next one is blood clotting. It is also the important function of blood. Next one is temperature regulation. Blood plays a very important role in the maintenance of temperature of the body, so it helps in the temperature regulation. One more thing, ठीक है, एक चीज हमें समझ में आती है, ब्लड जो है वो ब्लड क्लॉटिंग करता है. प्लेटलेट्स वहां पे प्रेजेंट है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, लेकिन हमारी वेसल्स में बहता हुआ ब्लड क्लॉट नहीं होता. ऐसा क्यों? ठीक है, जब प्लेटलेट्स ब्लड में प्रेजेंट है तो प्लेटलेट्स तो ब्लड के अंदर बॉडी में भी प्रेजेंट है, तो वहां पर ब्लड वेसल्स में बहता हुआ क्लॉट क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा लीवर एक प्रोटीन सिक्रेट करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, दैट इज कॉल्ड एज हिपेरिन प्रोटीन. एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हिपेरिन प्रोटीन इन द ब्लड, द फ्लोटिंग ब्लड डज नॉट क्लॉट. ना वेसल्स में जो ब्लड क्लॉट हो रहा है, ये ब्लड फ्लो कर रहा है, ये क्लॉट नहीं होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटीन प्रेजेंट है दैट इज हिपेरिन, एंड दिस हिपेरिन प्रोटीन डज नॉट अलाउ ब्लड टू क्लॉट इन द वेसल्स. Clear? One more definition, that is what is serum. ठीक है, इसके बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं. व्हाट इज सीरम? सीरम मीन्स प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर. प्लाज्मा
without clotting factor is called as serum. है ना, हमने देखा था प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है, दैट इज फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स आर देयर. Fibrinogen protein is helpful in the blood clotting. So if the clotting factor is not present in the plasma, then that type of plasma is called as serum. So this is all about the blood. ना ब्लड के कंपोजिशन के बारे में हमने प्लाज्मा से लेकर प्लेटलेट्स तक पूरा डिस्कशन पढ़ लिया है. इसके बाद हम नेक्स्ट आने वाले हैं लिम्फ के बारे में हम स्टडी करेंगे. In our next video we will discuss about the lymph and blood vessels. Thank you very much.